बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्लास 12 फिजिकल एजुकेशन ऑफलाइन क्लास है। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है endurance development training methods. There are three types of endurance training methods. Number first हमने पढ़ा था, जो हमने पहले पढ़ा था, that is the continuous training method. Number 2 हमने पढ़ा था interval training method. आज हम पढ़ रहे हैं इसी का थर्ड पार्ट, that is the Fartlek training method. Fartlek training method. Fartlek training method is a natural training method by which that was introduced, जिसको इंट्रोड्यूस किया था ओ एस्ट्रैंड ने किया था। ओ एस्ट्रैंड जो कि एक स्वीडन का एक कोच था। He was one of the much more famous and familiar coach of Sweden and he introduced this type of training method जिसका नाम था Fartlek training method, and this method is also known as Swedish training method. इसको Swedish training method भी कहा जाता था। and इस मेथड की वेरी मच इम्पोर्टेंट है। नंबर फर्स्ट, it increases, it makes the endurance development and it also makes the speed endurance development in our body, and it also means जो Fartlek training method है इसको speedy play भी माना जाता है। It's known as the speedy play method of training. क्योंकि speedy play इसको क्यों कहा जाता है? Because it's very effective for the speed एंड इंडोरेंस डेवलपमेंट के लिए। बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है स्पीड और इंडोरेंस के लिए, क्योंकि इट इंक्रीज द इंडोरेंस कैपेसिटी अलोंग विद द स्पीड ऑफ द बॉडी। ये मेथड है, दिस मेथड इम्पोर्टेंट ये है कि इस मेथड को जानना है। एंड द ट्रेनिंग इज सेम लाइक कंटिन्यूस और इंटर ट्रेनिंग मेथड की तरह सेम होता है। बट लाइक दिस there is an effect, there is an effective method by which we can use it to increase the endurance. But this method की इसकी खासियत है, the method used the natural resource and the natural environment. ये वो ट्रेनिंग मेथड है जिसमें नेचुरल रिसोर्सेज और नेचुरल एनवायरनमेंट का इस्तेमाल किया जाता है। नेचुरल ट्रैक क्या होता है? in which there is no need of ground, in which there is no need of any track or something like that. एक एथलीट को एक टारगेट दिया जाता है, you can run 20 किलोमीटर या 10 किलोमीटर, उसको एक दिया जाता है, अल्टीमेटम दिया जाता है, you have to run the 10 किलोमीटर in which he can choose his path. चाहे वो रोड का इस्तेमाल करे, चाहे he can use the orchards field, or he can use the forests, he can use the river roads, he can use any road. And this is the Fartlek training method, is that training method in which athlete is set free, completely athlete को आज़ादी दी जाती है to run from a starting point with his own speed, with his own pace, with his own. He may run fast, he may run slow, he may run regular, he may run in intervals, he may run continuous, he may run in intervals, and he may control his speed. Simply athlete को free किया जाता है to choose his path. He may use shortcuts, he may use long cuts, he may use risky roads, he may use अच्छे रोड्स इस्तेमाल कर सकता है। Simply he may take rest, वो रेस्ट भी ले सकता है, he may sit, he may walk, he may मतलब स्लो चल सकता है, he may run, so that he can change according to his need, according to his surroundings, according to his ways. He can use hill ways, he can use river beds, he can use forests, he can use mud roads, he can use mud roads, he can use grassy ground, he can use roads. Simply self discipline इसमें important role play करता है, क्योंकि we must keep this in our mind that he must reach to his finishing point at a desired time. In the desired time पे वो अपना उसको एक distance दी जाती है. He may run, he may walk, he may be slow, he may be fast, he may use any road. This is the main इम्पोर्टेंस ऑफ फर्टलिक ट्रेनिंग कि फर्टलिक ट्रेनिंग में एक एथलीट को फ्री किया जाता है, वो कोई भी रोड इस्तेमाल कर सकते हैं। ही हैव टू रीच हिज जो उसको पॉइंट दिया जाता है, जो उसको दैट मीन्स टारगेट दिया जाता है, ही हैव टू रीच देयर, उसको वहाँ पे रोड पहुँचना
है. If he did not reach there, then there will be the falls in the training. फिर उसको क्या, he have to run, फिर से उसको दौड़ना पड़ेगा. कोई इट्स ए स्वीडिश ट्रेनिंग मेथड जिसमें क्या एथलीट को फ्री किया जाता है कि वेदर ही यूज एनी रोड, वेदर ही यूज एनी टाइम, वेदर ही यूज एनी पेस, वेदर ही यूज एनी मेथड, जो भी मेथड इस्तेमाल का अपनी मर्जी है, बट ही हैव टू रीच इट. कोई भी इसमें कोई ट्रैक नहीं होता, इसमें ग्राउंड नहीं होता है, इसमें एथलीट इसको कोच इसको गाइड करता है कि ही हैव टू रीच अबाउट कहीं पे भी पहुंचता है. को फॉर्डलिंग मेथड वो ट्रेनिंग मेथड है जिसमें नेशनल कोर्स इज सेलेक्टेड. इट मे बी रनिंग थ्रू फॉरेस्ट, हिल्स या समथिंग लाइक दैट. बिफोर स्टार्टिंग द फॉर्डलिंग ट्रेनिंग वन शुड बी हैव प्रॉपर वार्म अप होना चाहिए एंड ही शुड कवर हिज डिस्टेंस. इसमें इसकी एडवांटेज ये है कि ये हम ऑफ सीजन में भी कर सकते हैं. वी कैन मेक दिस काइंड ऑफ ट्रेनिंग किसी भी वक्त में, इसकी एडवांटेज है. नंबर 2, दूसरी एक एडवांटेज इसकी है कि इट डेवलप्स क्रिएटिविटी एंड एंड्योरेंस की. एक क्रिएटिविटी, जंगल से दौड़ना या किसी नई चीज को देखना, इट मे डेवलप्स क्रिएटिविटी. इट ऑल्सो प्रोवाइड्स गुड एक्सपीरियंस ऑफ नेचर का भी कुछ अच्छा एक्सपीरियंस देती है. सेल्फ कॉन्फिडेंस को इंक्रीज करता है. नेचुरल मोटिवेशन इज ऑल्सो डेवलप. एंड इट ऑल्सो इसकी एक एडवांटेज है कि इट इंक्रीज द कैलिबर टू टैकल द डिफरेंट सिचुएशन. एक एथलीट किसी जंगल या किसी रिवर से चलता है, he have to face the different he may face different kind of adverse situations. उनको properly handle करना, that develops the मतलब क्या problem tackling situations. डिसएडवांटेज भी इसकी है कि समटाइम्स इट में देयर में भी हैपन एक्सीडेंट, किसी वैरान जगह में एक्सीडेंट हो गया तो दैट विल बी डिफिकल्ट. या समटाइम्स इसमें ये आधे लोगों का कहना है कि नेचुरल ट्रैक इज मिसिंग. जो नेचुरल ट्रैक होता है कि एक एथलीट को ग्राउंड में ट्रेनिंग दी जाती है, या जो उसका रनिंग ट्रैक होता है या कॉम्पिटिटिव ट्रैक होता है, दैट्स मिसिंग. और कुछ लोग का ये मानना है कि कोच इसके साथ, कोच कैन नॉट ऑब्जर्व प्रॉपरली. तो ये भी एक है. समटाइम्स इट मे बी डेंजरस क्योंकि डेस्टिनेशन लॉस हो सकती है, समथिंग लाइक दैट. There may be some kind of disadvantages of this training and much more, but there are much more advantages of this training. So that this is the important method of the training to improve the endurance of our body. Thank you very much.